wait till 5 more minutes then so that participants can join. Guys, if you do have any questions, you guys can drop them in the chat. We will be answering it right now. For session 1 actually, so it's the continuation of that session. We'll wait for 3 more minutes until 7 p.m. hits, then we'll start inshallah. Asghar, let me remind you again. The thing is कि हम लोग जो भी recordings हैं वो हम लोग end of boot camp में upload कर देंगे on our YouTube channel, that is DSC Mute. So अभी कोई भी चीज़ upload नहीं होगी. You guys have to be attentive in your sessions. Yeah, that's pretty much it. Recording end of the boot camp आपको सारे sessions की मिल जाएगी इंशाल्लाह. No worries. We'll make sure कि कोई disturbance create ना करे, and yeah, thank you for letting us know. Okay guys, so we should start now. I again welcome you all to day 2 of Android Development Bootcamp, which is an 8 days bootcamp for the participants who didn't know already or who have joined us today, not in the first session. Today is Android app code starter actually. So buckle up with equal dedication. आपकी तरफ से भी is important, and live code with the speaker as he goes by. So before starting off the first session, let me give you a quick reminder. Only those who have RSVP for this event, they will be included in the quiz and later in the withdrawal of the surprise gift. The link of the quiz आपको दी जाएगी at the end of the webinar. Quiz questions complete sessions में से होते हैं, so be attentive, listen to each and every word of the speaker, because that's what I can give you as a hint. So if you still have any questions, please drop them in the chat. The host for today probably needs no introduction, as she is the one and only Laiba Maiman, a famous face of software engineering department, a debater, and have been hosting events like these since forever. She is also Developer Student Club's Mute, Mehran University of Engineering, Jamshoro Chapters, Director Expert. Hi Laiba, welcome. You can take over now. Hi everyone, Assalamu alaikum. Thank you so much, Fatma, for the introduction. Okay, let's start. I welcome you all in the second day of Android Bootcamp, and I hope this will continue with the same spirit for the whole 8 days. Okay, let's reintroduce our speaker for today, Mr. Muhammad Taha. He was our speaker for day 1, and now day 2 of Android Bootcamp is also headed by him. Mr. Taha is yet another Android developer from Software Engineering Department, Mute Jamshoro. However, his talent not
limited to Android development and coding. He has also a stronghold over the Python and the web development. So without wasting much of the time, I'm handing over the mic to Mr. Mohammed Taha. Over to you, Mr. Mohammed Taha. Thank you for the introduction. Assalamu alaikum everyone. First of all, जो आप लोगों के सवाल आए थे डे 1 के हिसाब से, डे 1 के लिए, तो वो क्वेश्चंस मैं आंसर करूँगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बिकॉज आई हैवंट अटेंडेड द मीटिंग फॉर सम रीज़न. सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट बेसिकली एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं, उसके ऊपर जो एप्स को डेवलप करने का जो पूरा प्रोसीजर होता है, जो एक पूरा प्रोसेस कैरी आउट होता है, उसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं. बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट इसे कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइड मी अ लिटिल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स. लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे विंडोज़ है, जिस तरह मैक ओएस है, इसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जिसमें बस मोस्टली लिनक्स में काम ये होता है कि ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, पेन टेस्टिंग वगैरह, और इसमें कमांड्स जो है ना वो आनी चाहिए आपको यूज़ करने के लिए इसको. बाकी या इट्स जस्ट अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. और थर्ड क्वेश्चन इज why launcher is in MipMap folder while external resources are in drawable folder. तो इसका जवाब थोड़ा लंबा है. सवाल इनका थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इनका सवाल ये है कि लॉन्चर आइकन्स जो हैं हम मिपमैप फोल्डर में क्यों रखते हैं, ड्रॉएबल में क्यों नहीं रखते. हालांकि ड्रॉएबल में भी तो इमेजेस ही आती हैं और मिपमैप में भी इमेजेस ही आती हैं. तो बेसिकली इसका सवाल फ़ोन की डेंसिटी से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने शायद थोड़ा बहुत डिस्कस किया था डे 1 में कि डिफरेंट फ़ोन्स की डिफरेंट जो है ना डेंसिटीज़ होती हैं. तो ड्रॉएबल फ़ोल्डर में ड्रॉएबल एक तो फ़ोल्डर होता है सिंपल, जिसका नाम होता है ड्रॉएबल. कुछ मल्टीपल और फ़ोल्डर भी एंड्रॉयड स्टूडियो बनाता है, जिसके ड्रॉएबल लिखा होता है और डैश लगा के आगे लिखा होता है XDPI, डबल XDPI या HDPI, इस तरह से लिखा होता है. तो ये DPI, व्हाट इज़ DPI, बेसिकली ये डेंसिटी होती है ना. तो अब XDPI और डबल XDPI और HDPI, इनमें डेंसिटीज़ का फ़र्क होता है. यानी कि कोई 120 क्या कहते हैं पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच होता है, कोई 160 पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच होता है. तो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या करता है, जब गूगल ऐप इंस्टॉल करता है तो आपकी ऐप में आपके फ़ोन के हिसाब से जो डेंसिटी आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, सिर्फ उन फाइल्स को रखता है, और बाकी जो ड्रॉएबल की फाइल्स होती हैं उनको वो डिलीट कर देता है. लेकिन मिपमैप के अंदर ऐसा नहीं होता. वो सारी फाइल्स को जो रखता है, वो सारी फाइल्स को रखता है, XDPI और HDPI, ये सारी फाइल्स को रखता है ना. तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, ड्रॉएबल फ़ोल्डर की और मिपमैप फ़ोल्डर की. इसी वजह से इनको एक साथ नहीं रखा जाता और लॉन्चर आइकन्स को इसीलिए मिपमैप के अंदर रखा जाता है, क्योंकि लॉन्चर आइकन्स को चेंज कर सकता है ना एंड्रॉयड. मतलब अगर डबल XDPI को एंड्रॉयड सपोर्ट करता है तो वो XDPI वाला आइकन भी यूज़ कर सकता है. तो इसी वजह से सारे फ़ोल्डर्स रखे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड नहीं, मतलब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन वी से द ग्रेडल परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म ऑफ नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्सेप्ट एंड्रॉयड स्टूडियो. ओके, तो दो क्वेश्चन हैं ये. ग्रेडल को हम ये नहीं कह सकते कि कंपाइलेशन है. कंपाइलेशन ग्रेडल का एक पार्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेडल के अंदर कंपाइलेशन के अलावा जो सारा कोड आपने XML में लिखा होता है और उसके अलावा जो जावा में लिखा होता है, ये सारा कंबाइन होकर एक APK में कन्वर्ट होता है. तो ग्रेडल का कंपाइलेशन ग्रेडल का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि कंपाइलेशन ही है ग्रेडल. और उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अदर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं. उसके अलावा विजुअल स्टूडियो है, फ्लटर है, और या ये हैं, इस तरह के हैं. अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे. मैंने क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज़ करा है तो मुझे इसका कुछ खास पता नहीं है. उसके बाद है क्विज़, सिर्फ क्विज़ लिखा हुआ है. तो एम आई सपोज टू डिस्कस क्विज़ हियर, फातिमा, लाइबा, whoever is listening? Okay, so no, we'll just tell them in the end what actually is quiz and what they have to do while attempting the quiz. So yeah, leave it on us. All right.
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप ऐप. I guess that's what we are learning in this boot camp. You have to know XML and you have to know a little know-how. अगर आपको Java की हो तो it's good, otherwise you can just learn basics and then you can program in Java. I hope all the questions are answered. So let me get on with today's session. So yeah, आज का जो सेशन है वो इसके अंदर हम कोडिंग कर रहे होंगे जावा की. तो जावा की कोडिंग करने से पहले हमें जावा के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए. कंटेंट्स आज के क्या क्या होंगे कि डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे, मेथड्स डिस्कस करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड देन इंटेंट्स एंड देन वी विल बी डूइंग सम लाइव कोडिंग. जो साइन अप एक्टिविटी डे 1 में क्रिएट की थी जिसका सिर्फ लेआउट क्रिएट किया था, विल बी डूइंग जावा कोडिंग इन दैट, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए. तो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होती हैं. एंड्रॉयड में डेटा टाइप्स पढ़ने का मतलब एंड्रॉयड में डेटा टाइप पढ़ने का मतलब ये है कि हम जावा में डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग जावा इन एंड्रॉयड. तो कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स का हो सकता है, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो आपको पता हो कि जिस टाइप का डेटा आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, डेटा टाइप उस डेटा को स्पेसिफाई करती है. फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा हो गया या स्ट्रिंग डेटा हो गया या फिर कोई कैरेक्टर डेटा हो गया. इस तरह का डेटा टाइप जो है ना स्पेसिफाई करती है. उसके अलावा डेटा टाइप की 2 टाइप्स होती हैं जावा में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं. दे आर सिंपल वेरी बेसिक डेटा टाइप्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह बाइट हो गया, इंटीजर हो गया या फ्लोटिंग पॉइंट हो गया. फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली जो पॉइंट डेसिमल वाले जो इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट्स कहा जाता है. उसके अलावा कैरेक्टर्स हो गया. तो ये बेसिक टाइप्स होती हैं, ये जावा के अंदर ऑलरेडी गिवन होती हैं और दे जस्ट डिफाइन डेटा टाइप्स. इनके साथ कोई मेथड्स वगैरह एसोसिएटेड नहीं होते. एंड देन वी हैव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि प्री डिफाइंड नहीं आती जावा में. कुछ डेटा टाइप्स सिर्फ स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि जावा प्री डिफाइंड करके देता है जो कि नॉन प्रिमिटिव है. अब नॉन प्रिमिटिव होने का मतलब ये है कि ये जो ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उनको यूज़ करते हुए इसको बनाया गया है. सो इट इज़ बेसिकली अ क्लास का कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे बताऊंगा. और जो इसके साथ जो है वो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स जो है ना एसोसिएटेड होते हैं, इसी वजह से इसको नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है. सो जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट और क्लासेस से हैंडल की जाती है. बेसिकली क्लास क्या होती है. क्लास एक तरह से ब्लूप्रिंट आपका जो है ना आइडेंटिफाई करती है. एक तरह से एक कलेक्शन होता है एट्रीब्यूट्स का. अब एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स को कहा जा सकता है और उसके बाद अलावा मेथड्स फंक्शन को कहा जा सकता है. अब फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो एक, जैसे फॉर एग्जांपल कार जो है एक ऑब्जेक्ट है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं ड्राइव करना, सॉरी वेट है उसका एट्रीब्यूट, कलर है उसका एट्रीब्यूट, और उसके मेथड्स हैं ड्राइव करना या ब्रेक लगाना. सो ये उसके मेथड्स हैं. ओके, तो इसका जो सिंटैक्स है जावा के अंदर वो ये है कि एक्सेस मॉडिफायर इसमें सबसे पहले लगाना होता है. सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर, अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. एक्चुअली थ्री टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड को अभी छोड़ते हैं. पब्लिक का मतलब ये है कि ये क्लास पूरे पैकेज में, पैकेज मतलब फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जो ये क्लास रखी है तो ये उस फोल्डर में कोई भी जावा का जो प्रोग्राम होगा उस क्लास को एक्सेस कर सकेगा. और प्राइवेट अगर हम उसको कर देते हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा. ऑब्वियसली उस फोल्डर के अंदर कोई भी क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकेगी, वो क्लास प्राइवेट हो जाएगी. तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली ये डिफाइन करता है. इसके कीवर्ड्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. सो एंड देन देयर इज अ क्लास कीवर्ड. क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं. एंड देन क्लास नेम, जो भी आप अपने क्लास का नाम देना चाहें, क्लास ए या जो भी. एंड देन यहाँ पे ये कुछ ऑप्शनल ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपने क्लास को एक्सटेंड करना है. अब एक्सटेंड करने का मतलब ये है, यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है.
इनहेरिटेंस मतलब कि अगर एक क्लास है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिफाइंड हैं और अगर आप एक नई क्लास बनाना चाहते हो और उसके अंदर आप चाहते हो कि वही प्रॉपर्टीज़ हों, लेकिन आप उसके अंदर उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करना चाह रहे हो, तो एक्सटेंड वहाँ पे आप इनहेरिटेंस यूज़ करोगे। बजाय इसके कि वो प्रॉपर्टीज़ आप एज़ इट इज़ दोबारा उसी क्लास में लिखो, यू कैन सिंपली जस्ट एक्सटेंड एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसमें इनहेरिट हो जाएँगी और फिर उस क्लास के अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी, फिर आप उस क्लास को मज़ीद जो है ना एक्सटेंड कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ एक और ऑप्शनल है यहाँ पे चीज़, इम्प्लीमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम इंटरफ़ेस को। अच्छा, ये एक्सटेंड्स जो है ये कीवर्ड है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स जो है ये भी एक जावा का प्री डिफाइंड कीवर्ड है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यूज़ दैट कीवर्ड और उसके बाद सुपर क्लास का जो भी नाम है उसको। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये इंटरफ़ेस आता है। अब इंटरफ़ेस में क्लास के अंदर हम मेथड्स की डेफिनेशन भी देते हैं, वैल्यूज़ भी देते हैं और जो मेथड वो परफ़ॉर्म करेगा, हम वो सारी चीज़ें देते हैं। इंटरफ़ेस में हम वो नहीं देते हैं। इंटरफ़ेस में सिंपली हम एक जो है ना स्ट्रक्चर दे देते हैं। सो या बेसिक आइडिया इसका ये है। इंटरफ़ेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने फर्दर इसको डिस्कवर करना है तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। अगर क्लास के बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्लास हमने डिस्कस करा कि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट जो कि ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का दिखेगा। अब क्लास अकेली जो है वो फंक्शनल नहीं होती, उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट उसका बनाना पड़ेगा कि क्लास के अंदर जो मेथड्स हमने बनाए हैं उसको हमें यूज़ करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि एक बिरयानी बनाने की जो रेसिपी है, जस्ट द रेसिपी इज़ नो गुड। तो अगर आप उस रेसिपी को एक्चुअली कैरी आउट करते हैं और उस बिरयानी कुक करते हैं, तो उसके बाद वो बिरयानी ईटेबल बनती है। तो इसी तरह से क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट उस क्लास की एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब उस क्लास को उस क्लास का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट। तो इसका सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का? इसके अंदर न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जावा में। पहले हम लिखते हैं क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम एंड देन न्यू कीवर्ड इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास नेम, और ये जो दो पैरेंथेसिस हैं ये लगते ही लगते हैं। इन पैरेंथेसिस का मैं बताता हूँ, एक्चुअली इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है क्लास ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू न्यू क्लास ए एंड देन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये जो मेथड की तरह से मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा हुआ है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बेसिकली एक मेथड है। मेथड क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। Okay, so first of all, let's look at this simple Java program and then we'll go to methods. Java में जो हर चीज़ है वो क्लासेस में ही डिफाइन होती है। क्लास के बाहर आप कोई भी मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। जिस तरह C++ में होता है, आपको कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो आप मेथड बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ क्लास में ही होती है। जो मेन क्लास होती है वो पब्लिक होती है और जावा और जो आप फाइल सेव करते हो जावा की, वो मेन क्लास डॉट जावा के नाम से सेव करते हो। मेन क्लास का नाम डॉट जावा। एंड देन देयर इज़ दिस क्लासिक जावा का जो एक मेन फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आर्गुमेंट्स में इसके हमने दिया हुआ है कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने लिया हुआ है, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स हम इसको आर्गुमेंट में दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये कंपाइलर कॉल करता है इसको, मेन मेथड को। और उसके अलावा मैंने इसमें किया क्या है, इस मेथड में मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग डिफाइन करा है। दिस इज़ अ स्ट्रिंग, मैंने उसको वैल्यू दी है। और system.out.println इट इज़ एक्चुअली अ मेथड टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल। कंसोल मतलब जो आपकी कमांड लाइन स्क्रीन होती है वो। तो सिंपली हमने यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और उसके बाद str.length। अब जैसे मैंने आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बताया था कि उसमें मेथड्स एसोसिएटेड होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया str और उसको वैल्यू दे दी कोई ना कोई। अब ये स्ट्रिंग जो है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसके साथ मेथड्स एसोसिएटेड है। तो जो मेथड इसके साथ एसोसिएटेड है वो लेंथ एक है। अब लेंथ क्या करेगा, जो कि उसके नाम से ज़ाहिर है, वो इस स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जब इसको रन करा तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कॉलन स्पेस और 16 ये प्रिंट हो गया। जो भी इस स्ट्रिंग की लेंथ थी वो यहाँ पे रिटर्न हो गई। ये आपको ज़्यादा समझ आएगा जब हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेथड्स भी हैं।
C++ का अगर आप लोगों का बैकग्राउंड होगा तो मेथड सिंपली फंक्शंस ही होते हैं। सिंपल क्लास एक बनाई है, अगेन एक पब्लिक क्लास मेन, ये मेन क्लास है क्योंकि ये पब्लिक है, और जो मैंने प्रोग्राम सेव किया था वो मेन डॉट जावा के नाम से सेव किया था। एंड देन अगेन दिस क्लासिक जावा मेन सिग्नेचर, मेन मेथड का सिग्नेचर, और उसके बाद एक क्लास मैंने यहाँ पे बनाई है। जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो मैंने इधर बनाई है, एक क्लास जो सिग्नेचर मैंने जो मैंने सिंटैक्स बताया था उस हिसाब से क्लास का कीवर्ड मैंने यूज़ करा है। एक्सेस मॉडिफायर मैंने कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं करा, वो ऑप्शनल होता है अगर आप यूज़ करना चाहो या ना यूज़ करना चाहो। क्लास एंड देन क्लास नेम, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का जिसको मैंने वैल्यू दी है 10, और ये वेरिएबल मैं अपने मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट करवा रहा हूँ सिंपली। एज यू कैन सी क्लास ए obj a is equal to new class a parenthesis open parenthesis close, और then system.out.println, and then again this text the value of class A is the value in class A is, और उसके बाद प्लस करके मैंने यहाँ पे obj डॉट वैल्यू। अच्छा, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स या क्लास के जो मेथड्स को एक्सेस करते हैं वो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के जो भी आपको एक्सेस करना है, वेरिएबल एट्रीब्यूट एक्सेस करना है या मेथड एक्सेस करना है, उसका नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू मुझे एक्सेस करना था तो मैंने वैल्यू लिख दिया, एंड देन आउटपुट में आप देख सकते हैं कि वैल्यू की वैल्यू प्रिंट हुई है 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स को हम फंक्शंस भी बोलते हैं। ये सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, और सिंपली आप उसको ये बोल सकते हैं कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका कोई ना कोई नाम है। अब उस नाम से आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं और वो वही फंक्शन परफॉर्म कर देगा जो उसके अंदर लिखा है। अब मेथड में अगेन एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होता है। एक्सेस मॉडिफायर जो है वो एट्रीब्यूट्स के साथ यानी कि वेरिएबल्स के साथ भी यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे इंट वैल्यू जो मैंने लिखा था, यहाँ पे भी मैं एक्सेस मॉडिफायर कोई ना कोई दे सकता था, पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो भी। खैर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर हम दे सकते हैं मेथड के अगर आप चाहते हैं देना। अदरवाइज सिंपली टाइप द रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होती है कि इस मेथड में जो फंक्शन परफॉर्म हो उसके बाद किस टाइप का डेटा रिटर्न हो। इस बेसिकली डेटा टाइप ही होती है जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि इस फंक्शन में जो सारा जो कोड लिखा है वो परफॉर्म होने के बाद जो डेटा रिटर्न होना है वो किस टाइप का डेटा रिटर्न होना है। तो या दिस इज रिटर्न टाइप, एंड देन वी हैव फंक्शन नेम जो भी आप अपनी चॉइस से दे सकते हैं, एंड देन देयर आर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, और इनसाइड दीज पैरेंथेसिस हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स इस फंक्शन को जो पैरामीटर्स बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं जो इस फंक्शन को रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, इससे बेहतर समझ आएगा। एक्सेस मॉडिफायर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक, एंड देन रिटर्न टाइप मैंने इसकी दी हुई है वॉइड। अब वॉइड का मतलब होता है नल, कोई भी रिटर्न ना करे, कुछ भी रिटर्न ना करे। तो फंक्शन का नाम मैंने दिया है एक्स फंक्शन, और पैरामीटर में इसका मैंने सिंपली एक इंट और उसके बाद उसको नाम देती है। जिस तरह एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, इसमें वैल्यू नहीं देनी होती, सिंपली हमने बताना होता है कि किस टाइप का वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का नाम हमें डिफाइन करना होता है ताकि हम उस डेफिनेशन में उस नाम को यूज़ कर सकें। ओके, अब मेथड की एग्जांपल। सिंपल मेथड यहाँ पे इस क्लास में मैंने बनाया है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का मुझे बताना था। कंस्ट्रक्टर जो है ये क्लास ए का, ये क्लास ए पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, ये बेसिकली एक मेथड ही है जो कि जिसका काम ये होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास इसको असाइन करना। ये जो ओबीजे ए मैंने बनाया है ये रेफरेंस कहते हैं बेसिकली इसको। तो इसको इसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली बना के असाइन करना, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। एनीवेज again this main class and then main methods की जो सिग्नेचर है वो, एंड देन वी हैव दिस क्लास ए obj a इज इक्वल टू न्यू क्लास a। इससे हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया obj a के नाम से, और उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं इंटीजर x
इज इक्वल टू 10, इंटीजर y इज इक्वल टू 20, और उसके बाद मैं इनका सम रिटर्न करवा रहा हूँ इन दोनों का। अब जैसे यहाँ पे आप क्लास ए में देखो, पहले क्लास ए के अंदर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया हुआ था, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 10। अब उस वेरिएबल को हटा के मैंने एक मेथड बनाया है, पब्लिक इंटीजर एडिशन फंक्शन मैंने उसको नाम दिया है, और उसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ, इंटीजर ए और इंटीजर बी। मेथड की जो डेफिनेशन होती है वहाँ पे ये जो दो स्पेसिफाई किए जाते हैं उनको पैरामीटर बोला जाता है, और यहाँ पे जब मैंने मेथड कॉल करा है और यहाँ पे इनको वैल्यूज असाइन की हैं तो x और y यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट गए हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। तो उसके बाद यहाँ Taha, पे यप someone requested to also continue in English as well because they might be from India or somewhere. So I think like you should have a blend of Urdu and English, please. alright, that's fine. So let me explain this simple method again. What I did is that I created an object of class A. As you can see here, there is class A. I've already created it before, but in previous program, I just added one value, that was integer value is equal to one attribute actually, one that was integer value is equal to 10. So here I have changed it a bit and I have added a method जो कि है public integer addition function. Public is a access modifier, and then we have the return type integer, and then addition function is the name of that function, and then we have two parameters, integer a and integer b. And inside this method definition, what I have written is this return statement, return a plus b. अब what is the use of this return statement? अब return statement का use ये है कि मैंने यहाँ पे एक return type जो specify किया है. What this return statement will do is that it will return the data after processing it. As you can see, I have a plus b. A plus b processing हुई और उसके बाद return statement will return this data to wherever it is being called. Now I have called it here in this main method, integer sum is equal to obj dot dot, and then I have mentioned this name. I have passed x comma y as arguments, and then this method, as defined, will return the sum of these two arguments. I have the value of x as 10 and value of y as 20. So what this addition function will return will be 10 plus 20, that is 30. As you can see in this output, I printed it here, system.out.println, and the sum is 30. So I hope it is clear. So yeah, a little something about the constructor. I told you constructor can be parameterized or non-parameterized. What I mean by that is that parameter, उसके अंदर पैरामीटर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस तरह हम फंक्शन में करते हैं, और उसके अलावा पैरामीटर we can also choose not to specify parameters. So we override this constructor if we have something important, if we are to do something when the object of some class is created. Now what I'm going to do here is that I have created this constructor in this class integer. So I've changed the definition again of this class, integer value. Again, I've added that, and then I have overridden this constructor, constructor class A, and then I have taken integer value as an argument. So what I will do is that अभी जो class के अंदर जो value है, the value in this class, variable in this class will be assigned to the value variable that is provided when the object is created. अब यहाँ पे जो this है, this specifies the object of the, this has the reference of the own class, यानी कि जो class A है, this has the reference of the class A basically. So this dot value will refer to this value I have created here, and this simple value will refer to this value that is in the parameter of this constructor. So it was a little
constructor, and then I have created simply a method that returns nothing and it takes nothing as an argument and just simply prints the value that is in class A. So I have created two objects, class obj_a1 with the argument 10 in the constructor, and then obj_a2 with the argument 20 in the constructor, and then I simply called print value on both the objects. So as you can see in the output, the value is 10 and the value is 20. So both objects have different values because I have created different objects for them. All right. I hope it is clear. Now let's move on to conditional statements. Conditional statements basically are the statements that get executed based on some condition. कोई ना कोई condition जब true होती है, when some condition is true, then that statement is executed. So these are some of the conditional operators, comparison operators, basically that are going to be used mostly. So yeah, equal to will return true if true or false based on the equality of the two values that you are comparing. And then similarly, not equal to, and then greater than, and then less than. This is some pretty basic stuff. And then तो जो conditional statements होती हैं, the conditional statements in Java are if else, the most common. So we'll be looking at that. Again, this main class and then this main method, and then inside this main method what I have done is I have created an integer value जिसको मैंने value assign करी है 9, and then I have created an if else structure. It's basically called an if else structure in combination. So what it does is basically I have used the if is a keyword in Java, and then again this parenthesis, and inside these parentheses I have provided some expression. Now what this expression returns must be true or false. So then it would be considered as true or false. So yeah, value if so what I have created is if value is equal to 9, it will check if the value is equal to 9, and then it will go inside this block of code that I have defined in these curly braces and execute this code. Otherwise, if this condition is not true, then it will go to else and execute this block of code that is right here. So as you can see, I have provided the value 9. It will go here. The condition is false, so it will skip this part from this curly brace to this curly brace, and then it will execute this else part. As you can see in the output, value is not 10. So simple if else again. So what I have done is recall the constructor example I have taught you. So in this example, I have added a method. I have modified print value actually. All these things are same. I have just modified the print value. What the print value will do this, if the value in this class A is less than 10, then print this, the value is less than 10. Else if, now this is something new, else if this condition is not true, check if this is true. So else if value is equal to 10. If value is equal to 10, then print this. Otherwise, if value is not equal to 10, then it must be greater. If it is greater than 10, then print the value is greater than 10. So again, I have created two objects, obj_a1, obj_a2, with the 10 and 20 in the constructor argument, and then I have called print value on both objects. So when I provided 10, it returned the value is equal to 10. And then when I have provided 20, it printed the value is greater than 10. So it worked out as planned. Okay, so now that we have covered some basic stuff of Java, we are away from the boring stuff.
and we can move on to something called intents in Android. So what are basically intents? You must have seen that when you are using some apps, like if you are using Instagram or if you are using Facebook, you provide your email to log in and your password to log in, and then when you press sign in, then that activity is closed. The sign in activity is closed and the new activity appears, which has your news feed on it and the stories from the people you are following. So what makes this happen? Basically, the magic behind the magic uh, is done by intents. So what are intents? Basically, these are the messaging objects which lets activities communicate in an app. So if you create an activity and uh, create some methods in it, then it is not just the case that all the other activities can access those methods and access those data. So to communicate between yeah. Sorry to interrupt you. Can you please explain in English and Urdu both? Because some of the students are saying that English में करे and Urdu में भी करे. So try to Okay. explain in both languages. Mix Okay. करे. I'll try. Sorry Thank about that. ठीक है, तो इंटेंट्स बेसिकली मैसेजिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक्टिविटीज़ के दरमियान में कम्युनिकेशन करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हैं या फेसबुक में कभी लॉगिन करते हैं, तो यू प्रोवाइड योर इन्फो, दैट इज़ योर ईमेल एंड पासवर्ड, एंड व्हेन यू आर डन प्रोवाइडिंग यू प्रेस द साइन इन बटन, और उसके बाद जो साइन अप बटन है या साइन इन बटन है वो ट्रिगर करता है एक और एक्टिविटी को जिसमें आपकी न्यूज़ फीड डिस्प्ले होती है. सो how did the first activity know that the second how did the second activity know that this मुझे ये वाला अकाउंट दिखाना है? How did the second activity know? It know, मतलब उसको इस तरह से पता चला कि जो फर्स्ट एक्टिविटी में डेटा यूजर ने एंटर करा था वो सेकंड एक्टिविटी तक गया, और फिर उसके बाद उसने सर्वर से उसकी न्यूज़ फीड उठाई और वहाँ पे शो करवा दी. So basically there are two types of intents, but we'll be covering only explicit intents. So before moving on, based on the stuff that I have taught you about Java, the basic stuff, let me clarify what the simple main activity looks like when you create an empty activity. तो जब आप मेन एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो ये कोड आपके पास ऑलरेडी जनरेटेड होता है. तो इस कोड में सिंपली यहाँ पे पैकेज कीवर्ड is used and there is the package name. Package is basically the folder in which your Java file is residing. So yeah, com.example.explicit intent demo is the package folder name, sorry. And then we have some imports. Import keyword is basically ये क्या करता है कि जो लाइब्रेरीज आपने यूज़ करनी है, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड नहीं होती, जो यूज़ करनी होती हैं वो उसी टाइम जो है ना इंपोर्ट करवाते हैं. इंपोर्ट मतलब जावा एंड्रॉयड के अंदर वो लाइब्रेरीज होती हैं, बट यू जस्ट इंपोर्ट them to use them. So yeah, this is the library name app compat activity, and then this again is the library name bundle, which is in the Android folder, and then in the OS folder, and then the class name is bundle. Okay, again this simple class we have created. Public is the access modifier as I've taught you, and then class keyword, and then the class name, and then extends app compat activity. It has extended the app compat activity which we have imported from here. और उसके बाद यहाँ पे it has overridden. This at override is basically called the annotation. So it specifies that this method is overridden from this class, this super class app compat activity. Okay, so on create method is necessary. ये इसको जो है ना ओवरराइड करना लाजमी होता है क्योंकि ये बेसिकली सेट करता है थिंग्स को. तो yeah, we have called this super is basically refers to this super class you have, and then it will call the on create of the super class, क्योंकि super class के अंदर ऑलरेडी एक on create exist करता है. हम यहाँ पे दोबारा create कर रहे हैं, दोबारा override कर रहे हैं I mean on create को. तो
पहले ये सुपर डॉट ऑन क्रिएट करेगा जो कि सुपर क्लास का मेथड है, एंड देन इट विल सिंपली पास दिस आर्गुमेंट which it is taking as parameter saved in instance state. ये सिंपली ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक होता है ये या and then set content view method. What this basically does is that जो कि layout आपने बनाया होता है, जैसे हमने कल sign up activity का layout बनाया था, तो it sets this layout to this activity. Yeah, and in the argument what it is taking is r dot layout dot activity main. So what is r? Basically r is a class that has all the IDs of the resources. So this class is basically used to access the resources in the Java folder. So Java class, sorry. So what it is doing is that r dot, it is calling this layout folder, and then it is going to, it is calling this activity underscore main, which is the name of the layout. ये जो नाम है, ये लेआउट फाइल का नाम है जो हमने मेन एक्टिविटी के लिए क्रिएट किया था, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल ये था. ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि जो लेआउट हमने क्रिएट किया हुआ है वो सेट हो जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू explicit intents now that has gotten out of way. तो explicit intents basically क्या होते हैं कि they are basically used to call the activities from your app. यानी कि अगर आपके ऐप के अंदर एक मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ यू हैव क्रिएटेड एन ऐप जिसके अंदर अगर आप साइन अप करें तो वो आपको एक दूसरी एक्टिविटी पे ले जाए जहाँ पे आपकी न्यूज़ फीड या आपकी जो है वो सर्वर से ली गई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, तो यू यूज़ एक्सप्लिसिट इंटेंट्स, जो कि आपकी अपनी एक्सप्लिसिट इंटेंट्स में बेसिकली यही होता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ आपने क्रिएट की हुए हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए हम एक्सप्लिसिट इंटेंट्स जो है ना यूज़ करते हैं. So I've created this simple program. Okay, first of all, how to add a new activity. So basically आप एक project Android Studio के अंदर create करते हैं, and when you create that object you get these two files. When you create that project you get these two files. Activity main.xml जो कि layout file होती है, and activity main activity.java जो कि Java file होती है जिसमें सारा आपका कोड होता है. And टू ऐड अ न्यू एक्टिविटी, क्योंकि हम एक न्यू एक्टिविटी को कॉल करना चाह रहे हैं तो हमें एक न्यू एक्टिविटी ऐड भी करनी है, तो यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस ऐप फोल्डर एंड देन गो टू न्यू एंड देन गो टू एक्टिविटी एंड देन गो टू एम्प्टी एक्टिविटी. अगर यहाँ पे जो एक्टिविटी आपने क्रिएट करनी है वो शो नहीं हो रही तो यू कैन जस्ट गो टू गैलरी और वहाँ पे सारी एक्टिविटी जो है ना शो हो जाएंगी. तो आपने एम्प्टी बनानी है, ऐप बार एक्टिविटी बनानी है, व्हाटएवर, यू कैन जस्ट क्रिएट दैट. ओके, so I've created a simple program. Let's look at the output first. So what I'm doing here is that when I'm clicking this open second activity button, तो ये एक नई एक्टिविटी पे मुझे लेके जा रहा है. तो इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे मैंने एक मेन एक्टिविटी बनाई है. मेन एक्टिविटी के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा का जो कोड है वो ये है. इसमें अगेन दिस पैकेज नेम एंड अगेन दीज इम्पोर्ट्स, जो चीज़ें मुझे इम्पोर्ट करवानी है, एंड अगेन दिस मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी. यहाँ पे जो न्यू है वो है बटन. एक बटन मैंने लेआउट के अंदर क्रिएट किया है. तो उसके लिए मुझे एक इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा अगर मुझे जावा कोड के अंदर उसको एक्सेस करना है, क्योंकि मुझे बटन क्लिक का एक्शन डिफाइन करना है और एक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे जावा के अंदर कोड करना पड़ेगा. तो इसीलिए आई हैव क्रिएटेड दिस बटन का मैंने वेरिएबल एक बनाया है, और इस बटन के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इसको मुझे कोई ना कोई वैल्यू वो वाला बटन असाइन करने के लिए जो मैंने बनाया है लेआउट के अंदर, उसके लिए मैं एक मेथड एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ना प्रोवाइड करता है, जो कि है एंड्रॉयड एसडीके बेसिकली प्रोवाइड करता है, जो कि है फाइंड व्यू बाय आईडी. अब बटन क्योंकि एक व्यू ही है, तो या फाइंड व्यू बाय आईडी का मतलब ये है कि आईडी हम कोई ना कोई व्यू को अपने असाइन करेंगे और फिर उस व्यू से हम उस आईडी से हम उस व्यू को फाइंड करके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको असाइन कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज दैट आर डॉट वी हैव गॉन इनटू दिस आईडी, एंड और उसके बाद जो भी आईडी मैंने इसको असाइन की थी, अब यहाँ पे XML के अंदर अगर आप देखो तो मैंने बटन के टैग में
जो आईडी एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैंने जिस बटन को आईडी असाइन की है वो है बटन, सिंपल बटन। तो वही आईडी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। इस आईडी को चेंज कर सकते हैं, यू कैन राइट इट ओपन सेकंड बटन, ओपन सेकंड एक्टिविटी बटन, या फिर बटन 2, बटन 1, और फिर वही आईडी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो या ये करने से हमारे पास इनिशियलाइज होगी, और ऑन क्रिएट में करने का मकसद ये है कि जैसे एक्टिविटी क्रिएट हो तो ये बटन ऑलरेडी इनिशियलाइज हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, ये बेसिकली वो मेथड है जो उस टाइम कॉल होगा जब मैं बटन को क्लिक करूँगा। तो इस मेथड के अंदर सिंपली मैंने एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दिया है, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये मेथड, क्योंकि ये सिंपली इसके अंदर कोई ना कोई कोड होगा जो रन होगा। एंड देन मेथड का नाम ओपन सेकंड एक्टिविटी, और इसके अंदर ये जो व्यू मैंने आर्गुमेंट में दिया है ये लाजमी है, क्योंकि ऑन क्लिक वाले जो बटन होते हैं, ऑन क्लिक वाले जो मेथड्स होते हैं, यानी कि वो मेथड जो कि कॉल होने हैं बटन क्लिक पे या किसी भी व्यू के क्लिक पे, तो उनके लिए व्यू आर्गुमेंट में देना लाजमी है अगर मैं उनको XML में कॉल कर रहा हूँ। और भी तरीके हैं दो, वो आप खुद फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला तरीका यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट इंटेंट्स अब आए हैं। इंटेंट ऑलरेडी एक क्लास है जावा के अंदर, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड SDK में। तो उस क्लास का हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटेंट के नाम से, न्यू इंटेंट, और उसके जो कंस्ट्रक्टर में जो हमारे पास आर्गुमेंट्स जा रहे हैं वो हैं, एक तो आर्गुमेंट जाता है कॉन्टेक्स्ट का, यानी कि ये जो इंटेंट है ये कहाँ से कॉल हो रहा है। अब जो क्लास हमारी है हमें उसी का अगर कॉन्टेक्स्ट देना है तो दिस कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस कीवर्ड अपनी ही क्लास को, जिस क्लास में वो मौजूद होता है उसी क्लास को वो रेफर करता है। एंड दिस सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, सेकंड एक्टिविटी एक क्लास मैंने बनाई है जावा के अंदर, एक्टिविटी बनाई है बेसिकली, तो उसको ये कॉल करेगा सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास को। ठीक है, तो क्योंकि हमने सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट इंटेंट है, क्योंकि ये अपनी यूज़र की बनाई हुई एक्टिविटी को कॉल कर रहा है। एंड देन देयर इज़ दिस प्री डिफाइंड मेथड स्टार्ट एक्टिविटी, जिसमें हम सिंपली इंटेंट को एज एन आर्गुमेंट देंगे, और जो एक्टिविटी हमने कॉल यहाँ पे स्पेसिफाई की है वो कॉल हो जाएगी, शो हो जाएगी यूज़र की स्क्रीन पे इस मेथड के कॉल होते ही। सो XML के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ये काफ़ी हद तक जो कोड है वो प्री जनरेटेड ही है। इसमें सिर्फ मैंने चेंजिंग कहाँ की है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसकी टेक्स्ट में चेंजिंग की है। ओपन सेकंड एक्टिविटी मैंने इसका टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया है, और एक और मैंने एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन क्लिक। अब ये एट्रीब्यूट के अंदर मैं एक मेथड का नाम लिखूंगा, जो मेथड मैंने जावा क्लास में मैंने बनाया है उस मेथड का नाम मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। ओपन सेकंड एक्टिविटी, एज यू कैन सी मैंने एज इट इज़ इस मेथड का नाम लिखा है, कोई पैरेंथेसिस वगैरह यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली मैं इस मेथड को नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, और ये मेथड जो है ना इस बटन के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो जब भी मैं क्लिक करूँगा सेकंड एक्टिविटी मेरी रन हो जाएगी। सेकंड एक्टिविटी के अंदर मैंने कुछ खास चेंजेस किए नहीं हैं, ये सिंपली जो ऑटो जनरेटेड कोड होता है एंड्रॉयड स्टूडियो का, एम्प्टी एक्टिविटी एक मैंने बनाई थी और उसके अंदर जो ऑटो जनरेटेड कोड होता है, या दैट्स इट। यही है इसमें सेट कंटेंट व्यू, जो कि सेकंड एक्टिविटी का लेआउट था, उसका नाम था एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड, वो उसके ऊपर सेट हो जाएगा। और या द ओनली चेंज आई हैव मेड इन दिस टेक्स्ट व्यू, मैंने एक टेक्स्ट व्यू ऐड करा था। टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी नहीं होता अगर आप एक और एक्टिविटी ऐड करते हो। तो टेक्स्ट व्यू मैंने किसके अंदर ऐड करा था, उसके कंस्ट्रेंट्स मैंने सेट किए थे, कंस्ट्रेंट बॉटम, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट है तो मैंने इसके कंस्ट्रेंट सेट किए थे। तो पेरेंट पेरेंट पेरेंट, क्योंकि ये सेंटर में आ गया था। तो उसके बाद मैंने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया, congrats you made it to the second activity, and that's it, प्रोग्राम completed। उसके बाद मैंने बिल्ड किया अपने फ़ोन पे, और this is the app, this is the final result that you are looking। then so ये तो हो गई थ्योरी, इसके अंदर ये मैंने सारा कोड वगैरह स्पेसिफाई कर दिया। so अब let's do some practical। जो साइन अप एक्टिविटी हमने क्रिएट की थी डे 1 पे, उसके अंदर कुछ जावा की कोडिंग करते हैं, और जो साइन अप के अंदर हम डेटा लेंगे यूज़र से, वो डेटा उस सेकंड एक्टिविटी पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता है।
Just hold on a minute, ये load हो जाए. Yeah, it is. Taha, Ali Aman wanted you should revise the previous concepts in no time, like 2 minutes में sum up कर दें what we did in session 2, like drag and drop. Session 1. Okay. Simply session 1 में हमने सिर्फ जो है ना Android Studio को सेटअप किया था. We just set it up Android Studio and we went over some basic designing concepts. Simple Android Studio को सेटअप करना इतना मुश्किल नहीं है. You just download it and then install it simply. और install करने के बाद I forgot to mention that कि यहाँ Android install होने के बाद जब first time when you open this Android Studio तो कुछ loadings जो है ना वो होती हैं. You will feel like कि Android Studio stuck हो गया है बिल्कुल, लेकिन वो downloading कुछ कर रहा होता है तो उसको complete होने दें. And then when it is completed तो उसके बाद आप जब भी run करेंगे तो it will run smoothly. Okay. So yeah, we did this and मैंने आपको ये बताया था कि SDK मैनेजर में जाने के बाद we go to this Android SDK on the left and यहाँ पे what we do is that SDK tools में जाके ये tools आपके पास जो मैंने टिक लगाया हुआ है ये इंस्टॉल होने चाहिए बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए Android Studio की. You just tick them. अगर आपके पास ऑलरेडी टिक नहीं है then just click apply and okay, तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे आपके पास components. Then that's fine. Android Studio जो है फिर आपके पास good to go होगा and you can code easily. We went over some attributes, some types of layout. Layout basically जो है ना वो activity का डिज़ाइन शो करता है कि एक्टिविटी किस तरह की है, उसके अंदर कौन कौन से व्यूज़ हैं, कौन कौन से बटन्स हैं, टेक्स्ट है नहीं है. तो लेआउट बेसिकली वो स्पेसिफाई करता है. XML के अंदर हम सिंपली लेआउट को डिफाइन करते हैं एंड these are the attributes जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. Android colon layout width is equal to match parent and Android colon layout underscore height और match parent बेसिकली एक कांस्टेंट है जो भी इस टैग का पेरेंट होगा उससे जो है ना इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो मैच हो जाएगी, उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा. एंड देन या अब कंस्ट्रेंट लेआउट होता है. अब लेआउट के अंदर आप मल्टीपल व्यूज भी ऐड कर सकते हैं. व्यू और व्यू ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमने देखा था. व्यू ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ व्यूज होता है. व्यू सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक होता है UI का और व्यूज के अंदर डिफरेंट तरह के व्यूज आ जाते हैं. बटन आ जाता है, कोई भी टेक्स्ट आपने डिस्प्ले कराना है वो आ जाता है. और उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स होते हैं. ID एट्रीब्यूट क्या करता है? वो यूनिक ID देनी होती है इसको ताकि हम जावा कोड के अंदर इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. और या टेक्स्ट व्यू के अंदर ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है. या अगर समरी करें तो हमने यही डिस्कस किया था. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टास्क. तो ये हमारे पास सिंपल जो है एंड्रॉइड स्टूडियो का. या kindly explain in both languages the practical work, because some of the participants are from Indian, so they want to explain in English and some of them want to explain in Urdu. So try to explain both languages. Okay, I'll try. Okay, all right. Thank you. So should I give the overview again or what? No, carry on. Go towards the practical work. Okay. So this is the activity that we created on day 1. It has this one text view that says sign up and then 2 edit text basically, जो कि we got from this palette. And in the palette you just go to this text and then drag this plain text from here to here and then place it here and then just set the constraints like I have did. These 4 are the constraints. So uske baad we did this in day 1 and we didn't provide any functionality to this yet.
because this, as you can see, Java code is simple. So what we are going to do today is this provide this actually basic activity. So what we want to do is when we click this sign up button, then a new activity opens and this activity will show the data that we have entered in this sign up activity. So let's create first the second activity. We will go to this app and right click on it and go to new and then activity and then empty activity, because we want a simple activity, we don't want anything special. Let's specify the name as second activity and finish. So the second activity is created. Hold on, Gradle sync is in progress. Okay. Yeah, till it is in progress, what we will do is we will simply create an object of button. So as you can see, when I have written button, it shows me in red color, which means that it is an error. So Java is not able to identify it because I have not imported it. So when this happens to you, just do this: is drag your pointer there and click Alt plus press Alt plus Enter, and then it will automatically import this. And then you can see it's white again. So good. So just provide this variable name, and then we are going to create two other variables. Edit text. So basically, let's make it username. Username, edit text. And then again, another edit text object. Let's make it password, edit text. Okay. So we have just declared them. We have not initialized them. So let's initialize them in the onCreate method. So as I've told you, we'll use the find view by ID method. We'll use the R class and we will go to the ID class and we will specify the ID what we have. Actually, let's see what ID did I have assigned to that sign up button. So it's button 2 actually. So we're not going to change that, just use this button 2. उसके बाद हम यूजरनेम एडिट टेक्स्ट को इसी तरह इनिशियलाइज करेंगे. फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट, अब इसकी यूजर नेम इसकी क्या आईडी दी थी हमने. So it's basically this. Taha, I would like to just create. I would like to interrupt you here. We are dropping the feedback form. Please do fill it and do come back again after filling the feedback form to learn all of these concepts and for the quiz. So we are just dropping the feedback form. Please fill the feedback form and then come back again. Okay. So we simply just initialized both of the edit text and the button. So again, let's copy the ID from here. Edit text password. Just copy it. We're not changing that. अगर आप चाहें तो you can just provide your own ID as you like. So the only thing left to do is create a method that will be called when you press this button. So let's call that open second activity again. Open second activity. And this compulsory thing, that is putting view as a parameter in this, because it will be called. Again, it showed the red error. So I'll just press Alt Enter and it is imported again. So we're going to create this explicit intent to call that activity.
So what we will do is new intent and inside this argument we will provide context from where it is called, जहाँ से ये कॉल हो रहा है, और उसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट ये मांगता है, that is the class which will be called. So our class name is, as you can see, second activity हमारी class का नाम है. So we will just call second activity and dot this one little thing dot class. Yes, it's done. Just semicolon, and we'll start this activity by calling start activity method. और उसके बाद इसके अंदर मैं आर्गुमेंट में दे दूंगा intent, and it's all good to go. All we have to do is just अब मुझे main.xml के अंदर बटन के अंदर on click एट्रीब्यूट ऐड करना है. So on click, so as you can see मैंने सिर्फ on लिखा है और यहाँ पे जो है ना वो सजेशन आ गई है, तो लिखना ज़्यादा नहीं पड़ता. ये एक एंड्रॉइड स्टूडियो की अच्छी बात है. So yeah, all things done. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी कॉल होगी, यहाँ पे कोई डेटा जो मैंने यूजर नेम एडिट टेक्स्ट में और जो यूजर नेम पासवर्ड में लिया है वो डिस्प्ले नहीं होगा. तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए व्हाट वी विल डू इज we will basically pass data in this intent. So how do we do that? First of all, let's get the data. जहाँ edit text में से let's first get the data. I'm creating this string. इसको मैंने string जो है ना create किया है, and I'm just getting the data. That is from this username. ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यूजर नेम एडिट टेक्स्ट से. सो इसके लिए क्या करना होता है, इसका एक मेथड है डॉट. अगर आप डॉट लगाओगे यू कैन जस्ट सी के सारे मेथड यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो जाएंगे. जस्ट टाइप गेट टेक्स्ट, वेट अ सेकंड, गेट टेक्स्ट, यस. बट देयर इज वन प्रॉब्लम, इट रिटर्न्स द editable type of object. So we can either do the two-step thing कि जहाँ पे हमें editable का एक ऑब्जेक्ट अलग से बनाना पड़े, and we have to create this editable अलग से ऑब्जेक्ट, and then let's call it temp actually, because we will not be using that. Temp1, let's say. So create string again with the username as its variable name, and to get the string out of this editable, just simply call toString. Okay, it's a long process actually. Basically, simply what you could do is just call toString here, and इसको आप यूजर नेम ही रहने देते. You could also do that. So both are right. String again, password, I'm gonna do the same thing. Password edit text dot get text. It will return the editable object, and inside the editable object there is another method, that is toString, which returns the string out of this editable object. So now that we have the both the strings, we're going to pass that. So how do we pass that? In intent there is a method called put extra. Intent dot, as you can see when I write put, there it is, put extra. So put extra requires two arguments. दो आर्ग्यूमेंट लेता है ये, जो कि होता है, एक होता है नेम और एक होता है वैल्यू. यानी कि नेम इसलिए so that when the second activity accesses this intent, it is able to identify. आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे नेम देते हैं. तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको यूजर नेम ही नेम दे देता हूँ. आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं, यूजर नेम 1, यूजर नेम 2, व्हाटएवर यू लाइक. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे स्ट्रिंग की ही देनी है, तो आई विल जस्ट टाइप यूजर नेम. सो इस इंटेंट के अंदर ये डेटा चला गया, एंड देन आई हैव टू पुट अनदर डेटा, पुट एक्स्ट्रा. पासवर्ड मैंने इसको नेम दिया है, और पासवर्ड. So let's actually make it pass ताकि आप लोगों को फर्क समझ आए, to make you guys understand the difference between this and the variable names. It must be confusing because both are same.
ओके सो या वी हैव पुट दिस डेटा और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब जो डेटा है हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है। सो डिस्प्ले करवाने के लिए लेट्स क्रिएट 2 टेक्स्ट व्यूज रियली क्विक। Text view 1. Actually, we don't need 2 text views. We can just do it in 1 text view. So yeah, let's set the constraints. Hold on. Yeah. Let's go to split जहाँ पे XML code भी है and make changes in that. Text हमें फिलहाल इसका कोई भी नहीं रखना और जो ID है let's keep that text view. And then in second activity we are going to access this text view, so we have to create the object of this. So we will create a variable text view, again alt enter, import the class और फिर on create method में हम यहाँ पे text view को initialize कर देंगे against उसी तरह जिस तरह हमने main activity में किया था, id dot text view semicolon and yeah. So अच्छा, अब जो इंटेंट इसमें आया है एक्टिविटी में तो उसको गेट करने के लिए मतलब मेन एक्टिविटी से इंटेंट गया है इस एक्टिविटी में ना, तो उस इंटेंट को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट दिस इंटेंट ऑब्जेक्ट ताकि हम उस इंटेंट को स्टोर कर सकें। इंटेंट का एक हमने रेफरेंस बनाया इंटेंट के नाम से ताकि जो इंटेंट आया उसको हम गेट कर सकें। और सिंपली एक बिल्ट इन मेथड होता है गेट इंटेंट के नाम से, जो भी एक्टिविटी इस एक्टिविटी को कॉल करती है उस प्रीवियस एक्टिविटी से जो भी इंटेंट आ रहा है उसको गेट करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए गेट इंटेंट एक मेथड होता है। अब उसके इंटेंट में जो इंटेंट था वो डेटा समेत इस एक्टिविटी के अंदर आ चुका है। अब हम उस इंटेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट 2 वेरिएबल्स जो कि हमने वहाँ पे यूज़ किए थे, दैट वाज यूज़र नेम एंड इंटेंट। अब जो डेटा हमने वहाँ पे दिया था उसको एक्सेस करने के लिए वी विल टाइप, वहाँ पे मैंने पुट यूज़ किया था, यहाँ पे वी विल यूज़ गेट इंटेंट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, एक्चुअली गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। इट विल रिटर्न द टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप पास की थी तो इट विल रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। अब नेम हमने वहाँ पे क्या दिया था, यूजर, हमने यहाँ पे इसको नेम दिया था यूजर नेम के लिए। सो वी विल जस्ट टाइप दैट एंड सिमिलरली we'll do the same for password. This is the last thing basically, and then we will just run this activity, this program actually. So yeah, get string extra again and pass, क्योंकि हमने यहाँ पे पास स्पेसिफाई किया था और उसको पासवर्ड जो है ना वो डेटा दिया था। ओके, सो वी हैव गॉट इन these two. अब we have to call this text view set text. We actually have to set text which we have got from the previous activity. So anything, just type username and then plus username variable. Hold on. Yeah, username variable and again password. Password variable. This will set it, and yeah, we don't have to do anything else in this second activity. So we are done with the code. Let me run this application on my mobile phone and show you. So before running that application, I just wanted to let you know really quick that how to run this application on your mobile phone. Basically, there are a few steps which you have to go through. Just
go to your settings and just drag down to your about phone or just find your build number. मेरा build number यहाँ पर है, so I will just find my build number and then tap on it few times, and then it will ask for your password. And I am now in developer mode. So after that, what I will do is I'll get back. आपके पास जो developer options है वो visible हो जाएगा. You will be shown the developer option in this. So it will be enabled. और उसके बाद आप developer options में जाएं और जाने के बाद just enable this USB debugging and click OK. And then connect your phone to your Android Studio. So when you connect that phone, Android Studio will immediately identify it. और फिर उसके बाद आपके पास जो उसके बाद आपके पास जो भी डिवाइस होगी वो आपका नाम आपके पास शो हो जाए एंड्रॉइड स्टूडियो में शो हो जाएगा और देन यू कैन जस्ट डू यूएसबी डिबगिंग. अब एंड्रॉइड स्टूडियो को मैंने यहाँ पे रन कर दिया है. ग्रेडल बिल्ड इज रनिंग and shortly after we will be able to see this simple app that we have created. All right, it's installing. Yeah, so the app is launched. Sign up. I'll just write simply Taha and password will be 1234. Then when I click sign up, takes me to the second activity, and on the second activity, as you can see, username Taha, password 123. जो password मैंने previous activity में enter किया था वो password मुझे यहाँ पे show होगी. So basically explicit intents ये होता है. So I hope you are clear about that. I guess we are done for this lecture. Yeah. Okay, so we'll wait on Laiba. Laiba, if you're there. Okay, so I guess Laiba got disconnected or something. So I would want K just pay a huge shout out to the man himself, Muhammad Taha. We are really thankful for your contribution towards the Darper Student Club's Mute, Mehran University of Engineering and Technology Jamshoro chapter, as being a valuable speaker. This shall be written in the history. Looking forward to see you in other sessions. Thank you so much. And this pretty much ends the session here. Taha, do you have anything to say to the audience? No, that's it. I just wanted to say that what you have learned is not all. Google is always there. Just do some experiments of your own and you will get better. All right, thank you so much. Thank you. So guys, we'll just move on to the quiz meeting. So people who did RSVP for the event are told to go into the meeting. The meeting link is dropped in the chat right now. Those who RSVP for the event, please do come in that meeting because the quiz is happening there. And the rest who didn't RSVP, you guys can leave.